Namaskar. This is your course instructor Khushwant Padnani. Let us start off with the session. In today's session, we are doing differentiation, right? हम differentiation में जहाँ पर थे उससे आगे बढ़ रहे हैं और तो शुरुआत करते हैं, right? So let's begin with short prayer and meditation, like always. Request all of you to join your hands, close your eyes. Right? And repeat after me. One by one, the prayer, and before that, the meditation. Eyes closed, आंखें बंद हैं, मन शांत, चेहरे पर एक मुस्कान. Let a smile decorate your face. Controlled and deep breathing movement causes your brain's power to grow. जब हमारी सांसें गहरी होती हैं तो हमारे मन और मस्तिष्क की शक्ति और क्षमता बढ़ जाती है. Eyes are closed. A smile on the face. Take a deep breath in. And with a smile, deep breath out. फिर से एक बार एक गहरी सांस भीतर, मुस्कुराते हुए a deep breath out. फिर से एक बार take a deep breath in and a deep breath out. Controlled breathing movement has a direct impact on your emotional, physical, and mental well-being. हमारा इमोशनल, फिजिकल और मेंटल वेल-बीइंग बहुत बढ़िया हो जाता है when we have this habit of deep breathing. Once again, breathe in, slowly breathe out. जिसका मन शांत है, ऐसा इंसान अपने हर काज को, अपने हर काम को बहुत ही अच्छे से कर पाता है. When the mind, body, and spirit are in alignment with one another via deep breathing, all your tasks, all life situations and events fall into place. सब अपने आप सही ढंग से होने लगता है जब हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी कॉन्शियसनेस एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में होते हैं. Let's pray. आओ प्रार्थना करते हैं. Dear God, thank you for such good health, wealth, and wisdom. Thank you for all the love, for all the care, respect, knowledge, blessings, and your power. Thank you for your favor on my health, wealth, education, career, finances. Thank you that I have cleared NEET 2022, JEE Advanced 2022 in flying colors.
and have got admission into the best college of my dreams, my cherished, my well-wished IIT, the aims I wish to take admission into in the year 2022. Thank you, thank you, thank you. एक गहरी सांस के साथ मुस्कुराते हुए You may open your eyes. धीरे धीरे गहरी सांसों के साथ with deep breathing movements, you may open your eyes. So let's start. है ना, तो हम लोग शुरुआत करते हैं. आई थिंक वीरज विल स्टार्ट ऑफ विद द रिविजन, है ना. ओके, ऑलराइट. सो आई थिंक there is a message coming up. Let me see. Okay. So first, before we start, class, can I have a short poll? I would like you all to tell me if you're able to clearly hear me. है ना, अगर आपको मेरी आवाज clearly आ रही है तो please raise your hand. Yes, class. Okay. So I can see Viraj has raised his hand, Mahevish, Kushal, आयुष, तेजस, कार्तिकेय. ओके. चैतन्य, आई बिलीव किसी तरह का नेटवर्क इशू है आपके एंड पे. जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था, है ना, गेट इट रिपेयर्ड और मुझसे फोन पे एक बार बात कर लो, ठीक है, आफ्टर द क्लास, राइट. ओके. आई थिंक आपने मुझसे लास्ट टाइम कॉल करके बात नहीं किया था चैतन्य. प्लीज कॉल करो, ठीक है, क्लास के बाद मुझे पूरा इशू समझाओ, राइट, और उससे कैसे अपन बाहर आ सकते हैं आई ट्राई टू सजेस्ट, ठीक है. चलो, ओके क्लास, एवरीवन कैन ब्रिंग देयर हैंड्स डाउन. थैंक यू. So what I was talking to Chaitanya is he is not able to clearly hear my voice. It is perhaps due to a network issue at his end. कोई बात नहीं. We'll try to figure out कि उसको कैसे अपन उस समस्या का समाधान कर सकते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़े. इसके पहले let's see a quick revision of what we had read in the last class. हमने differentiation के कुछ concepts को देखा था, है ना. वीरज, एक बार ब्रीफ में आपको सबको बताना है. यस, गो अहेड वीरज. सर, लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा चेन रूल को वापस देखे थे. ठीक है, हमने चेन रूल के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे. बिल्कुल. यस सर. तो उसके बाद आपने 3 फॉर्मूलाज दिए थे चेन रूल से डिराइव्ड. ठीक है, चेन रूल के बाद ही हमने कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे. ओके, जैसे सर फर्स्ट फॉर्मूला था d by dx ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b. ठीक है, मतलब ax प्लस बी वाले फॉर्मूलाज, चाहे फिर साइन का हुआ, कॉस का हुआ, लॉग का हुआ, राइट. सर, है ना, तो हमने साइन ऑफ, हाँ बोलते जाओ. सो डी बाई डी एक्स. सो उसके बाद हमने प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल पढ़ा था. ठीक है, तो हमने देखा था साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल हो जाता है a टाइम्स ऑफ कॉस ax प्लस b. ठीक है, उसी तरह से फिर d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी का क्या पढ़ा था फंडा, बताओ. माइनस a साइन ax प्लस b. माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी. ठीक है, अच्छा, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या पढ़ा था, d बाई डी एक्स ऑफ, हाँ बोलो, log of ax प्लस b. लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या हो जाता है, बोलो. 1 by ax प्लस b टाइम्स a. ठीक है, 1 बाई ए एक्स प्लस बी टाइम्स ए, राइट. या इसको सीधा लिख सकते हो a बाई ए एक्स प्लस बी. बहुत बढ़िया, yes, बहुत शानदार. इसके बाद हमने कुछ और भी देखा था, डिवीजन और प्रोडक्ट रूल, है ना.
ठीक है। यस सर। क्या था कि अगर u और v का दो दो फंक्शंस ऑफ x का प्रोडक्ट है और उसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो आंसर क्या आता है, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू q डैश, ऐसे ही यू कुछ था। डैश। ठीक यस सर। है। अच्छा, और डिवीजन रूल समझाओ सबको। सर डिवीजन रूल था कि जब u बाय v का अपन को डिफरेंशिएशन करना है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है v u का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन बाय v स्क्वायर। ठीक है। और इसी को हमने एक और फंडे में देखा था कि अगर आप इसको चाहो तो u की जगह n लिख लो, है ना, और v की जगह d लिख लो, मतलब n बाई डी का स्क्वायर, n बाई डी का डिफरेंशियल इज गिवन बाय यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, राइट, ऐसे कुछ था वीरज, यस सर। है ना। यस सर। चलो ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमने देख लिया चेन रूल, हमने देख लिया ax प्लस बी के फॉर्म के डिफरेंशियल्स को कैसे फेस करना है, प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जो हम लोग दो तीन कुछ चीजें देख रहे हैं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला है आज का टॉपिक, डबल डिफरेंशिएशन। हेडिंग दो सब लोग, डबल डिफरेंशिएशन। अच्छा, आप लोगों ने जो होमवर्क सॉल्व करके सबमिट कर दिया होगा, राइट, जिन्होंने सबमिट कर दिया है डिफरेंशिएशन के, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो लोग हैंड रेज करो तो जरा। मैंने होमवर्क दिए थे कुछ क्वेश्चंस, आई थिंक 9 क्वेश्चंस थे। जिन लोगों ने टाइम पर सबमिट कर दिया है या नहीं भी किया है, चलो टाइम पे नहीं भी किया है बट सबमिट कर दिया है, वो लोग हैंड रेज करो सभी लोग। ओके, सो किन किन ने सबमिट कर दिया है, वीरज, तेजस, ठीक है, कार्तिकेय, आयुष, ओके, चैतन्या ने भी कर दिया है, कुशल इज रिमेनिंग, महेविश इज रिमेनिंग, ठीक है। मैसेज कर दो, रीजन मैसेज कर दो, और कब तक कर दोगे वो भी मैसेज कर दो, ठीक है। कुशल और महेविश, डिफरेंशिएशन का असाइनमेंट, क्या रीजन है कि अब तक सबमिट नहीं हो पाया है और कब तक हो जाएगा, ये सबमिट, ये चैट पर भेज दो, ठीक है। यस, आई एम वेटिंग, फटाफट से भेज दो महेविश और कुशल। यस, ओके। यस कुशल, भेज दो बच्चा। यस महेविश, रीजन भेज दो, आई एम वेटिंग। यस बच्चा लो क्विकली, और कब तक कर दोगे सबमिट ये भी भेजो। ओके, अच्छा, कुशल की क्लास थी इसलिए उसे पता नहीं चला। कुशल देखो, ऐसे केस में काम क्या करो, अगर आपकी क्लास होती है इसके तुरंत बाद, है ना, और उस समय आखिरी के कुछ 2-5 मिनट आप अटेंड नहीं कर पाते हो, तो यूट्यूब पर ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उस पर लॉग इन करके देख लीजिए, राइट, नो वरीज। ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए, थैंक यू, है ना। बस टाइम से होमवर्क करोगे तो क्या होगा, यू विल ऑल्सो फील ईज इन अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट लेक्चर, है ना, आपका भला छिपा है इसमें। ओके, लेट्स कंटिन्यू, है ना। तो हम लोग डबल डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, नाम से क्लियर हो रहा है डबल डिफरेंशिएशन, है ना। अभी तक हमने, अगर हमारे पास y दिया हुआ है किसी तरह की वैल्यू, है ना, उसको डिफरेंशिएट करके क्या निकालना सीख लिया है, dy बाई dx निकालना सीख लिया है ना। इसको हमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। लिखो सब लोग अपनी कॉपीज में, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस हमने क्या देखा, इसको हमने देखा कि किसी भी कर्व का स्लोप देता है, राइट, उसके टैंजेंट के जरिए, यानी कि स्लोप ऑफ टैंजेंट हमें मिलता है dy बाई dx करने के लिए, और हमने इसके फॉर्मूलाज भी देखे। अब हम आते हैं, अगर मैंने, ध्यान से सुनना, अगर मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब अगर डिफ्रेंशिएट किया किसको, जो ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स में एक्सप्रेशन आया है, तो बस उसको मैं कहता हूं डबल डिफरेंशियल, है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से देखो, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट। और कैसे समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर ये डी है, ये 2 डी है, मल्टीप्लाई हो गए। अगर याद ही करना है सपोज, तो उसकी ट्रिक देख लो,
दो डी है इसीलिए डी स्क्वायर, एक वाई है इसीलिए वाई। नीचे देखो क्या हो रहा है, भले डी दो है लेकिन एक्स भी कैसे हैं, दो है, तो इसीलिए क्या आ जा रहा है, डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा मान। तो वैसे ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है जहाँ डी अलग है वाई अलग है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, क्या मतलब होना चाहिए। देखो यहाँ क्या हो रहा है, डी बाई डी एक्स जिसका भी करें तो हम क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स किसका हो रहा है, स्लोप का हो रहा है, हाँ या ना। तो हम कह सकते हैं कि डबल डिफरेंशियल का मतलब है rate of change of slope with x। ठीक है, ये मीनिंग है इसकी, राइट। और ऑफ कोर्स इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसको अपन लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, एक और बात याद करो, हमने क्या पढ़ा था कि अगर सिंगल डिफरेंशियल है तो उसको y डैश से एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरह से अगर डबल डिफरेंशियल होता है ना तो उसको y डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तरीका होता है, y डैश लिखा है मतलब सिंगल डिफरेंशियल, y डबल डैश लिखा है मतलब डबल डिफरेंशियल। ठीक है, क्लियर है ये सबको, नोट डाउन कर लो क्विकली। और स्क्रीन पर जो भी लिखा है वंस यू हैव नोटेड इट डाउन, है ना, रिवीजन वाला पार्ट और आरएचएस में जो लिखा है वो एक बार आपने लिख लिया तो उसे लिखकर हैंड रेज कर लो, यस क्लास। ओके, ऑल आर डन, महेविश येट टू गो। महेविश जैसे ही हो जाए हैंड रेज करो, ठीक है। ओके, ओके ग्रेट, आई थिंक एवरीवन इज डन, लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, है ना, और फिर इसके एप्लीकेशन को समझते हैं। देखो, बहुत प्यारी सी चीज है ना, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। देखो कितना, और ये इतना एप्लीकेटिव है फिजिक्स में, है ना, हर दूसरी जगह तुम्हें ये यूज में आता हुआ दिखेगा। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले अगर मेरे पास दिया है y इज इक्वल टू, है ना, cos ऑफ 5x, है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है। लेट्स टेक वन ऑफ यू, लेट्स टेक आयुष। आयुष, इसका फर्स्ट डिफरेंशियल बोलो कितना होना चाहिए। इसका फर्स्ट डिफरेंशियल, देखो याद करो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, माइनस साइन, हाँ ए एक्स प्लस बी, पहले ये बताओ कितना होगा, माइनस ए साइन ऑफ, माइनस ए इंटू हाँ माइनस ए इंटू, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। बिल्कुल सही, माइनस ए इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो अब कितना आसान हो गया, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, जीरो हाँ सब्सटीट्यूट करो, बताओ कैसा हो जाएगा, माइनस, 5 बोलो, साइन ऑफ 5x। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर एक बार ये आ गया है ना, अब हमें सेकंड डिफरेंशियल निकालना है, मतलब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, करके दिखाओ क्या हो जाएगा, y डबल डैश इक्वल टू, बोलो वैल्यू बोलो, क्या हो जाएगी, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। तो -5 कांस्टेंट है तो वो तो हट जाएगा। ठीक है, अपन इसको सिलसिलेवार ढंग से करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ -5 ऑफ साइन 5x। ठीक है, -5 बाहर निकाल लेते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन साइन ऑफ 5x। 5x। ठीक है, आगे करो, आगे बताओ अब क्या करोगे। सर चेन रूल। फिर से वही फॉर्मूला, हाँ चेन रूल भी लगा अच्छा, या फॉर्मूला लगा सकते हो, बिल्कुल चेन रूल लगा सकते हो, लगाओ चेन रूल लगाओ आपकी बार।
चलो तो चेन लगाओ। चेन रूल से आएगा साइन का क्या हो जाएगा, पहले कॉस हो जाएगा, हाँ या ना? कॉस हो जाएगा तो कॉस कॉस फाइव फाइव एक्स एक्स लिख लो, फिर 5x को फिर से डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? इंटू फाइव इन फाइव आएगा 5 आएगा, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा माइनस ट्वेंटी माइनस फाइव 5 कॉस इंटू फाइव एक्स कॉस 5x, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या आ गया? y डबल डैश की वैल्यू आ गई, क्या आ गया आयुष? y डबल डैश, है ना? वाई डबल डैश की मैं बहुत बढ़िया। यस सर ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर से देखो, फिर से बताना। अब आई एम गिविंग यू y इज इक्वल टू ई पावर -3x, है ना? इसको आपको डिफरेंशिएट करना है और बताना है इट्स वैल्यू y डबल डैश एट x इज इक्वल टू 0। हाँ, कैसे करोगे बताओ? सर पहले वाई डैश निकाल लेंगे। बोलो कैसे निकालोगे y डैश? सर हम लोग को पता है कि जब अपन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, तो तो पहले वाई चेन डैश रूल लगाएंगे, है ना? मतलब e पावर -3x का e पावर -3x लिख देंगे पहले, राइट? यस लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में x तो नहीं था, 3x -3x था, तो इसको फिर से क्या करेंगे? अच्छा डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ या ना? यस ना? सर चलो फिर से डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा? -3x का तो -3 बाहर आ जाएगा और वो x 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो -3 -3 इंटू ई पावर e टू पावर -3x, है कि नहीं? 3x यस हो रहा है, डिफरेंशियल हो रहा है, क्लियर हो रहा है? चेन रूल लगा, यस सर है ना? क्योंकि यहाँ x नहीं था, देखो सभी लोग ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर z ऐसा कभी भी होता है तो हम क्या लिखते हैं? इसका डिफरेंशियल पहले तो e पावर z का डायरेक्ट डिफरेंशियल लिख दो, e पावर z होगा, फिर जो भी z है उसका डिफरेंशियल इससे मल्टीप्लाई करो, हाँ या ना? ऐसे ही यस होता है कि नहीं आयुष? यस सर यही सीखा है अपन ने, पक्का? यस सर इसी को क्या बोलते हैं? चेन रूल बोलते हैं कि नहीं? चेन रूल ठीक है, चलो ग्रेट। अच्छा एक और क्वेश्चन हल करो, अब ये लेते हैं महिवेश से, चलो बढ़िया आयु, वेरी गुड। सर इसको हाँ एक मिनट एक मिनट, हाँ बोलो। सर वाई डैश निकला ना अपन को तो वाई डबल डैश चाहिए था। हाँ गुड, आगे क्या निकालोगे बोलो? y डबल डैश कैसे निकालोगे बोलो? d बाय डी एक्स ऑफ y डैश करेंगे, हाँ या ना? यस सर वैल्यू डालो, बोलो आंसर कैसे निकालोगे? -3 फिर बाहर आ जाएगा ठीक है, और फिर सेम चीज फिर से करना है। करो करो, बोलो कितना होगा? e-3x का डिफरेंशिएशन -3 है ना? कितना हो जाएगा यस बोलो? 9 इंटू ई पावर -3x। -3x ठीक है, अब इसमें कब निकालनी है इसकी वैल्यू? y डबल डैश एट इज एट इक्वल x टू इक्वल्स टू 0 0, क्या हो जाएगी वैल्यू बोलो? तो इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। 9 इंटू ई पावर -3 इंटू 0, कैसे आ गया? 9 कैसे आ गया? यहाँ तो ई पावर 0 भी आ रहा है। सर -3 इंटू 0 0 और e नॉट 1 होगा। हाँ, ई पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलो गुड गुड गुड, आगे बढ़ते हैं, है ना? आयुष क्लियर हो गया? ये सवाल क्लियर हुआ, जवाब क्लियर हुआ, तरीका क्लियर हुआ? एक मिनट, हाँ यस सर ओके चलो ग्रेट, ठीक है। लेट्स सी महिविश, ठीक है महिविश, आपका अगर स्पीकर काम कर रहा है थोड़ा सा, है ना, कीप इट फार अवे, और यस महिविश बोलना शुरू करो, यस। आपका अगला सवाल आई एम गिविंग यू, ठीक है? अच्छा अब इसको बताना, थोड़ा सा सवाल अपन ट्विस्ट करेंगे, ठीक है? टू एंश्योर कि थोड़ा ब्रेन की एक्सरसाइज हो और आप लोग अच्छे से टैकलिंग पावर बढ़े, ठीक है? तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि एक कर्व है, एक क्या है? कर्व है, कुछ इस तरह से, है ना? एक ऐसा कर्व दिया हुआ है, राइट? क्लियर है? चलो अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं महेश, रुको, आई थिंक आप लोगों में से कुछ लोगों ने नहीं लिखा है,
तो रुक जाते हैं, पहले सब लोग इसे लिख लो अपने पास, ठीक। एक बार क्लास जैसे ही सब लोग इसको लिख लें, है ना, उसके बाद फिर हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही ये पेज हो जाए लिखना तो हैंड रेज करो, ठीक है। यस, वील वेट, नो वरीज। ओके, सो वीराज इज डन, तेजस ने लिख लिया है, कुशल ने लिख लिया है, आयुष इज ऑल्सो डन, कार्तिकेय इज राइटिंग एंड महिलेश हैज रिटन इट डाउन। ओके, कार्तिकेय जैसी हो जाए तो हैंड रेज करना, ठीक है। ओके, वी आर वेटिंग। ओके, ग्रेट, एवरीवन इज डन, थैंक यू क्लास, यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, लेट अस सी दिस पार्ट, है ना। तो हमें देखो क्वेश्चन पहले सब लोग ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक ग्राफ है बिटवीन एक्स एंड वाई, कुछ इस तरह से है ग्राफ, है ना। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ग्राफ का, ग्राफ के में दो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये है सपोज पॉइंट ए, है ना, और ये है पॉइंट बी। दो पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट ए और बी। अब मैं सपोज इस ग्राफ को दो हिस्सों में तोड़ देता हूं, ऐसा, एक है अपवर्ड कर्व, दूसरा है डाउनवर्ड कर्व, ठीक है। तो इसी बहाने आप लोग को इंट्रोड्यूस करते हैं टू अ कॉन्सेप्ट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, टू अ कॉन्सेप्ट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे अपन कहते हैं पैराबोला। लिख लो सब लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, है ना, ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हेडिंग डालना पैराबोला। पैराबोला एक खास तरह का कर्व है ना। हम लोगों ने क्या देखना है, पैराबोला की इक्वेशन को ध्यान से समझना है। ये जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखते हैं ना, कौन सी इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक, वो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर आप प्लॉट करोगे, मतलब y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह की किसी भी इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करोगे ना, तो आपके पास जो कर्व बन के आता है, जो कर्व बन के आता है, उसको अपन कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं, पैराबोला। सपोज कार्तिक के सारे डाउट्स एक साथ लेते हैं, रुको, ठीक है, पहले ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुन लो, और अपने पास जो डाउट्स हैं सबको एक नोटपैड में लिखना है, याद आ रहा है, सबको जो भी डाउट्स एक बार में आते हैं उसको नोटपैड में लिखना है, याद आ रहा है। नोटपैड रेडी है, जिस जिसके पास भी, वो लोग हैंड रेज करो। नोटपैड वो रेडी है जिसमें आपको डाउट्स लिखने हैं, वो हैंड रेज करो अगर रेडी है आपके पास तो। यस क्लास, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं एक खास तरह के पैराबोला की, है ना। हमने क्या कहा, पैराबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक खास तरह के पैराबोला की जनरल इक्वेशन है। किस तरह का पैराबोला है ये, देखो, अगर इसमें a की वैल्यू, अगर इसमें a की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला, है ना। लेकिन अगर इसमें a की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, कैसी हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो ये कैसा हो जाएगा,
डाउनवर्ड पैराबोला। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास एक कर्व है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स 6x² प्लस 6 प्लस 2, है ना, तो ये किस तरह का पैराबोला हुआ? डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा आ रहा है, देखो a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। अगर वो नेगेटिव हो जाए, है ना, बिकॉज a इज नेगेटिव, तो पैराबोला कैसा हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखो, सपोज y दिया हुआ है 6x² प्लस x प्लस 2। छोटा सा ही फर्क लाया हमने। क्या किया? जो कोफिशिएंट था, किसका कोफिशिएंट? x² का कोफिशिएंट मतलब a, यहां पर क्या हुआ? 6, इस जगह था -6, यहां पर हो गया 6, और इसीलिए कैसा हो गया? ग्रेटर देन 0। कैसा हो गया? ग्रेटर देन 0, है ना। तो पैराबोला कैसा हो जाएगा? अपवर्ड। पैराबोला कैसा हो जाएगा भाई? अपवर्ड। है कि नहीं? है ना। चलो, ये बात क्लियर है सबको? राइट, ये बात क्लियर है। देखना, अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो, अगर पैराबोला अपवर्ड है, कैसा है? अपवर्ड है, मतलब ये फर्स्ट पैराबोला, फर्स्ट केस ले लेते हैं और इसको सेकंड केस ले लेते हैं। सब लोग हैंड डाउन कर लेंगे, ठीक है, यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। देखो, अगर पैराबोला अपवर्ड है तो इसमें जो लोएस्ट पॉइंट आ रहा है, ये जो लोएस्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? याद करो, हमने मैक्सिमम मिनिमा जैसा कुछ पढ़ा है क्या? राइट। एक काम करते हैं, एक किसी व्यक्ति से आप लोगों में से इंटरेक्ट करते हैं और भी मजा आएगा। ओके, सो कुशल, एक बात बताओ, यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? मिनिमम वैल्यू ऑफ y या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? सर किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे? इन सारी वैल्यूज के रिस्पेक्ट, जो इसके इस कर्व में आजू बाजू। मैक्सिमम बिना, याद करो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स सर व्हिच आर ऑन द कर्व एंड नियर इट। याद आ रहा? इन द यस कॉन्सेप्ट ऑफ सर, मैक्सिमम मिनिमम। हाँ या ना? राइट। तो यस किसके रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं? इन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में। देखो ये वाले, राइट। हाँ, यस सर, बताओ। यस सर। यस बच्चा, बोलो। सर मिनिमा, मिनिमा बोले। एक्सेलेंट। अच्छा, अब बताओ एक और चीज। अब अगर सपोज मैं इस डाउनवर्ड पैराबोला को देखूं, ठीक है, और इसमें इन पॉइंट्स की बात करूं जो इस तरह से अरेंज्ड है, सपोज ये 7 पॉइंट्स हमने लिए, ठीक है। अच्छा, आप इनमें बताओ, ये वाला जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा इन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में जो इसके आसपास है? ये सारे पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में मैक्सिमा, मैक्सिमा कहलाएगा। मैक्सिमा। वेरी गुड। हमें हमें कुछ मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉपर्टी पता है क्या? उसके उस पॉइंट पर dy बाय dx कैसा होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ कैसा होता है? हमको जीरो, पता है क्या? जीरो। दोनों जीरो, जगह जीरो होता है, किसी एक जगह जीरो होता है कुशल? दोनों जगह। दोनों जगह मतलब एक मैक्सिमा पर भी dy बाय dx कैसा होता है? जीरो होता है। ये पता जीरो, है हमको? ठीक है। अच्छा, यस सर, मिनिमा पे कैसा होता है? जीरो होता है यहाँ पर भी। हाँ या ना? यस सर, अच्छा, यस सर। एक और बात बताओ कुशल, हमने क्या पढ़ा अभी अभी? d2y बाई dx स्क्वायर को इंग्लिश में अगर आप कोई टर्मिनोलॉजी देना चाहो तो हमने वो टर्मिनोलॉजी क्या दी है बताओ? रेट ऑफ, पढ़ो, रेट ऑफ, Rate of change of slope रेट with ऑफ x, चेंज change ऑफ of slope with x। स्लोप। ठीक है, स्लोप का रेट ऑफ चेंज, है ना, मतलब एक्स के बढ़ने के साथ साथ स्लोप को क्या हो रहा है, करेक्ट, यही देखना चाह रहे हैं इसके जरिए। यस सर, ठीक है। अच्छा, मुझे एक यस। बात बताना, ठीक है, अब मैं अलग अलग आपके सामने यहाँ पर टेंजेंट्स बना रहा हूँ, उनका स्लोप आपको बताना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ देखना, सो लेट्स से हियर, ये वाली टेंजेंट जो इस कर्व को टेंजेंट हो रही है एट दिस पॉइंट, यहाँ पर इस टेंजेंट का स्लोप बोलो कैसा है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव, नेगेटिव है। बढ़िया, नेगेटिव। बहुत बढ़िया, दिस इज नेगेटिव। एक और टेंजेंट बनाते हैं, है ना, कर्व के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है, ध्यान रखना, ठीक है, दो पैराबोलास को मैंने ज्वाइन किया हुआ है, डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा, इसके लिए बताओ, ये वाला पॉइंट जो अभी मैंने येलो टेंजेंट बनाई, इसके लिए बताओ कैसा होगा स्लोप? पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव?
अच्छा 0 होगा, ओके ओके। तो इस कर्व के लिए यहाँ पर जो मैंने टेंजेंट बनाया है स्लोप इज 0। चलो बढ़िया। अच्छा व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, सपोज अपन ये वाला पॉइंट चूज करते हैं यहाँ पर, और ये टेंजेंट ऐसे बन गई। इसके लिए टेंजेंट कैसी हो रही है बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब स्लोप कैसा हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ और? पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, चलो पॉजिटिव। ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए स्लोप है पॉजिटिव। एक, अब मैं इस कर्व को ऑब्जर्व करूं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, मैं पॉइंट्स को और भी नाम दे देता हूं, जैसे सी, जैसे डी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, सी पॉइंट, ए पॉइंट और डी पॉइंट को, है ना, हम बात कर रहे हैं मिनिमा की। सबसे पहली चीज, इस मिनिमा की बात करते हुए मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि सी पॉइंट पर स्लोप कैसा है, बोलो, नेगेटिव है, नेगेटिव। ठीक है। और यस सर। ए पर कैसा हो गया, 0 ठीक है। डी पर कैसा हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब लगातार स्लोप क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है या कांस्टेंट है? बढ़ रहा है। कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव से 0 और फिर 0 से पॉजिटिव होती है, इसका सिंपल मतलब है कि वो स्लोप या वो वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है। इसीलिए मैंने देखो यहाँ अपवर्ड एरो लगाया। इसका मतलब अगर मैं मिनिमा की बात करूं, है ना, अगर मैं मिनिमा की बात करूं, तो मिनिमा पर लगातार स्लोप क्या कर रहा है कुशल, as I am moving from C to C to A to D, as I am moving from C to A to D, है ना, यहां से यस। पॉइंट से C से A और A से D हम जा रहे हैं, तो स्लोप लगातार क्या कर रहा है कुशल, बढ़ रहा बढ़ रहा है ना। अगर स्लोप बढ़ रहा है है। तो मुझे क्या कहना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप at minima should be positive or should be negative। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो दो ही ऑप्शन है, if something is Should be increasing, positive। हाँ ऑफ कोर्स, देखो if something is increasing, है ना, देन उसका रेट ऑफ चेंज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। इसका मतलब पॉजिटिव। d2y by dx स्क्वायर कैसा हो गया कुशल, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव। कब, कब यस। at y is equal to y minimum, हाँ या ना, ये बात क्लियर है। यस सर। और हमने और क्या पढ़ा था कि dy by dx कैसा होता है, कैसा होता है बोलो, 0 होता है कि नहीं, 0। at minimum, हाँ या ना। यस। ये बात क्लियर हो यस गई सर। क्या कुशल, बहुत अच्छे से। यस सर। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि भाई देखो, सबसे पहले हमने एक सिंपल सा दो पैराबोला बनाए, है ना, समझा यहाँ पर कि अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स, अगर a नेगेटिव है तो पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड्स। फिर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि भाई अगर मैं डबल डिफरेंशियल को किसी एक ग्राफ में ऑब्जर्व करना चाहूं, खासकर एक मिनिमा पे, है ना, और एक मैक्सिमा पे, तो उसका कैसे एनालिसिस हो। तो मैंने 3 पॉइंट्स बनाए, एक यहाँ, दूसरा मिनिमा पर पहुंचकर, और तीसरा मिनिमा के बाद। इन 3 पॉइंट्स पे मैंने अब स्लोप की वैल्यू देखा या स्लोप का साइन देखा, है ना, टू बी एप्रोप्रिएट। तो यहाँ सी पर ये जो स्लोप है, क्योंकि इस टैंजेंट देखो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं tan ऑफ एनी ऑब्ट्यूज एंगल इज नेगेटिव, मतलब tan ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 इज नेगेटिव, है ना। तो हमने यहाँ देखा कि इस लाइन के लिए स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव हुआ। फिर वो लाइन जब ए पर हमने बनाया टैंजेंट को, तब स्लोप 0। फिर जब डी पर बनाया तब स्लोप पॉजिटिव, ठीक है। और हमने क्या कहा कि अगर स्लोप लगातार, देखो क्या हो रहा है, आप ही ने जवाब दिया कि सर अगर कोई चीज पहले नेगेटिव थी, फिर 0 हो गई और फिर पॉजिटिव हुई, ऐसी चीज में या ऐसी क्वांटिटी में, क्योंकि इसका स्लोप लगातार बढ़ रहा है ना, बिकॉज द स्लोप इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर आई कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब स्लोप लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव। कहां पर,
इसके अलोंग, मतलब मिनिमा के अलोंग, मिनिमा के अलोंग क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव। हमें ये समझ में आया। फिर हमने ये भी कहा कि इस लोएस्ट पॉइंट पे आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो कि dy बाई डी एक्स तो जीरो होता है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। इसी की एनालॉजी देखते हैं क्विकली, इसी की एनालॉजी देखते हैं क्विकली, है ना। और जो हमने एग्जाम्पल लिए थे ना, उसी एग्जाम्पल को लेकर वेरीफाई भी करते हैं, ठीक है। वो जो हमने दो पैराबोला लिए थे, उन पैराबोला में हम लोग वैल्यूज डालकर चेक भी करेंगे कि क्या सच में वैसा हो रहा है या सिर्फ सर ने ऐसे कहने के लिए कह दिया, ठीक है। हम ये भी देखते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, अब लेते हैं ऑन द स्टेज नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट। ओके सो लेट अस टेक नाउ तेजस से बात करते हैं, ठीक है। तेजस देखना यहाँ पर, आई एम मेकिंग अ डाउनवर्ड पैराबोला आपकी तरफ, ठीक है। अब मुझे बताना, इसमें अपन और 3 पॉइंट्स लेते हैं। सपोज P, Q और R, ऐसा मान लो कि जो पॉइंट Q है वो टॉप मोस्ट पॉइंट है, और अब मुझे टेंजेंट्स के स्लोप के बारे में तुमको बताना है, ठीक है। P पर जो टेंजेंट है, स्लोप कैसा है तेजस? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, बढ़िया। अच्छा, व्हाट अबाउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट Q? सपोज ये जीरो। टेंजेंट है, जीरो। अच्छा, जीरो का क्या मतलब हो गया? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस? यस सर, एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और स्लोप आ जा रहा है जीरो। अच्छा मुझे बताओ, अब मैं अगर सिमिलरली बना रहा हूँ स्लोप ऑन आर, अब ये स्लोप कैसा आना चाहिए? टेंजेंट ऑन आर तो नेगेटिव। नेगेटिव आना चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यही वही चीज जो हमने पहले लिखा फॉर अ मिनिमा, इसी को अपन लिखते हैं मैक्सिमा के लिए। मुझे बताओ ये पक्का मैक्सिमा होगा या मिनिमा तो नहीं होगा? यहाँ पर ये क्या बन रहा है, कर्व का मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है? मैक्सिमा। मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है। तो एट मैक्सिमा, एट मैक्सिमा अपन देख रहे हैं 3 पॉइंट्स फिर से इस बार, P, Q और R। जैसे जैसे x बढ़ता है, हम P से Q फिर Q से R की तरफ जाते हैं। अब स्लोप की वैल्यू देखते हैं लाइक लास्ट टाइम, राइट। तो मुझे बताओ P पर स्लोप कैसा है तेजस? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Q पर? जीरो। और R पर? नेगेटिव। अब बताओ ये लगातार इस क्वांटिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है? डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब स्लोप लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, हाँ या ना? यस सर। राइट, ठीक है। अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप होना चाहिए नेगेटिव। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, हाँ या ना? कब? सर। कब? एट y इज इक्वल टू वाई मैक्स, राइट। यस और सर। इसी पॉइंट पर dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू होती है, हम क्या जानते हैं? स्लोप कैसा होता है उस पॉइंट पर? जीरो। जीरो। स्लोप जीरो है ना? स्लोप जीरो है। और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैसा है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैसा है? नेगेटिव। बहुत बढ़िया, नेगेटिव। राइट। अब क्लास इसको यहाँ पर मैं एज अ फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ। इसको आपको कहाँ डालना है समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला कॉपी में, है ना। चलो अब इसको फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना सभी लोग। ये शॉर्ट पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप मैथ्स के स्टूडेंट हो सकता है आपने मैथ्स की क्लास में प्रैक्टिस की हो, लेकिन इसको फिजिक्स की फॉर्मूला कॉपी में लिखना जरूर है, ठीक है। चलो देखो क्या हो जाएगा, अब अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहला, एट y इज इक्वल टू वाई मैक्सिमा देखते हैं, है ना। इसको बोलते हैं मैक्सिमा, y इज इक्वल टू वाई मैक्स में
दो कंडीशन होती है, पहला dy by dx कैसा होना चाहिए, 0। अच्छा तेजस, दूसरा पॉइंट क्या होता है, d2y by dx स्क्वायर कैसा होना चाहिए। आई थिंक तेजस हैज म्यूटेड, तो आई थिंक आज किसने, आई थिंक कार्तिकेया हैज येट टू स्पीक, राइट, बाकी सबने बात कर ली है, चलो ठीक है, राइट। सो कार्तिकेया, d2y by dx स्क्वायर कैसा होना चाहिए, सर लेस देन 0। लेस देन 0, या अपन बोल सकते हैं नेगेटिव, ठीक है, राइट। यस सर। ओके, यस सर। अच्छा इसके बाद अपन एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्या, कि एट y इज इक्वल टू y मिनिमम, हमने क्या बोला, इसको मिनिमा बोला, हाँ या ना, राइट। यस सर। ठीक है, इस मिनिमा पर राइट। dy by dx कैसा होना चाहिए, बोलो, 0 इज इक्वल्स टू 0। है ना, यस और सर। d2y by dx स्क्वायर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए, वेरी गुड, ग्रेटर देन 0। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सेलेंट। तो अब हमें समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग y मैक्सिमम और y मिनिमम की वैल्यूज को लिख सकते हैं, ठीक है, और उस y मिनिमम और y मैक्सिमम पर स्लोप, है ना, और उसका डिफरेंशियल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द वर्किंग। एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उसके पहले अपने नोट्स को कंप्लीट कर लो, ठीक है, तो आई विल वेट हियर, ठीक है, जैसे ही ये पेज हो जाए लिखना, हैंड रेज करना, ठीक है, सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट पेज। यस क्लास, गेट गोइंग। जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करो, ठीक है। Okay, let's see. Okay, Kartikeya is done, Kushal is done, और आयुष ने भी कर लिया है, वीरज ने भी लिख लिया है, महेश इज आल्सो कंप्लीटेड, तेजस इज आल्सो डन, ठीक है, ग्रेट। तो अब ये नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, इसको भी फिनिश कर लो, ठीक है, और जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करो, फिर उसके बाद कार्तिकेय का डाउट ले लो। ठीक है, so I can see some of you have raised hands. All right, everyone is done, ठीक है, बढ़िया। ठीक, लेट्स टेक नेक्स्ट वन, है ना, एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं आप नेक्स्ट पार्ट में, छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो, या फिर कहो कि इसी का प्रैक्टिस न्यूमेरिकल देख रहे हो। ध्यान से देखना, ठीक है, और इसको सॉल्व करो, यहीं से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखो सब लोग। क्या कहा था हमने कि हम लोग एग्जाम्पल लेंगे दो, और उसी एग्जाम्पल को वेरीफाई करेंगे। देखो हमने दो एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पे देखो, वी हैड टेकन टू एग्जाम्पल्स ऑफ टू पैराबोलास, एक को डाउनवर्ड कहा था हमने और एक को अपवर्ड कहा था हमने, ठीक है। अब अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ये अपन को वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है, देख लो इक्वेशन, है ना, 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है, और एक में माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। दो इक्वेशंस लिखो, ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2,
देखो y इज इक्वल टू 6x² प्लस 6 प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट ऑफ 0 स्लोप उसी एंड वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। सेम चीज करनी है दोनों में। y इज इक्वल टू सेकेंड क्वेश्चन में -6² लिख लो प्लस 2 और प्लस x, है ना। तो ये लिख लो, सभी लोग ये सवाल लिख लो। दोनों में एक ही सवाल है ना। यहां से सॉल्व करना है आपको। यू आर सपोज टू सॉल्व फ्रॉम दिस पॉइंट एंड गेट द आंसर। दोनों में वो पॉइंट निकालना है जहां पर स्लोप 0 है और बताना है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, अगली क्लास में मैं किसी से भी पूछ सकता हूं कि आप बताओ कि कैसे होगा। कर पाए अच्छी बात है, नहीं कर पाए डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज रात में ये दोनों आपको सॉल्व करने हैं और बिफोर 9 o'clock ग्रुप पर सबमिट करने हैं। ठीक है, चलो ग्रेट। और अब कोई डाउट हो तो पूछ लो, राइट। यस कार्तिकेय, आई थिंक आपको कोई क्वेश्चन था। जिसको भी क्वेरी है, कोई भी आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा है वो हैंड रेज कर ले, बाकी लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। हाँ जी, सो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने थोड़ा सा रिवीजन किया, क्विक रिवीजन। फिर हमने डबल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को देखा, राइट, कुछ एग्जाम्पल देखे और फिर देखा कि उसका एप्लीकेशन कैसे होता है। ये जो हमने पार्ट पढ़ा ना, दिस इज द एप्लीकेशन। अगर किसी को डाउट हो तो हैंड रेज करे, बाकी लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक कार्तिकेय वांट्स टू आस्क समथिंग। यस यस सर सेकंड क्वेश्चन में डाउट है सर, सेकंड एग्जांपल सर, एक छोटे से स्टेप में डाउट। हाँ हाँ, बोलो 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 बच्चा। ये वाला पेज सर वो y is equals to e to the power minus 3x। हाँ यस सर। बताओ, हाँ बताओ सर इसमें यस सर ये नहीं वो सेकंड हाँ सर, इसमें जो डबल डिफरेंशिएशन वाला स्टेप है। डबल डिफरेंशिएशन वाला स्टेप है ये वाला स्टेप। हाँ हाँ सर, इसमें आंसर में आखिर में हम लोग अलग से -3 कहाँ से आ गया वो। अच्छा ओके, देखो इसको करते हैं यहाँ पर। ऐसा मान लो, ठीक है, ये वाला, ये यहाँ तक क्लियर है ना। y डैश इज इक्वल टू यस सर, यस और सर, -3x, यहाँ तक क्लियर है पक्का। यस सर। ठीक है ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं। सेम थिंग, कुछ नहीं है, बस इसने यहाँ पर क्या किया है। सपोज इसको मान लो कि ये सपोज कोई दूसरा फंक्शन है, सपोज अल्फा है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू सम k नॉट इंटू ई पावर माइनस जेड, ऐसा। ठीक है, z के टर्म्स में कोई फंक्शन है, लेकिन तुमको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करोगे? डी अल्फा बाय डी एक्स, हाँ या ना, इज इक्वल टू यस k नॉट बाहर आ जाएगा, है ना। और सपोज ये e पावर यस माइनस जेड भी ले लेते हैं, हाँ e पावर z ले लेते हैं, e पावर क्या ले लेते हैं, z ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, e पावर z जस का तस आ जाएगा, राइट। और यस साथ में सर, क्या आ जाएगा, यस सर, बाय dx आएगा, राइट, यस सर। है ना। तो अब देखो क्या हुआ, ये जो k नॉट है, एक मिनट, सो जस्ट मिनट, आई चेंज माय पेन। तो यहाँ देखना, ये जो k नॉट है इसकी जगह -3 आ गया, है ना। e पावर जो z है, z की जगह क्या आ गया, -3x आ वो गया, तो एज है इट ना। इज। हाँ, तो यस यस सर, -3x का डिफरेंशियल क्या दे रहा है, -3 दे रहा है। क्लियर हो रहा है क्या? -3x का ओके, डिफरेंशियल क्या दे रहा है, यस सर, -3 दे रहा है। बेसिकली -3। चेन रूल लगाए यहाँ पर। यस सर, समझ गया। हुआ क्लियर एकदम अच्छे से। यस सर, यस तो सर, हमने जो अब क्लियर तक क्लियर। पढ़ा था उससे कुछ अलग नहीं है, वही है, बस हमने उसको डायरेक्टली लिखा है ताकि आपको धीरे धीरे अब आदत पड़े। देखो क्या होगा क्लास, अभी यहाँ से ना हो सकता है
कि मैं जो आप लोग के साथ लिख रहा हूँ राइट इन द क्लास, उसमें से मैं कुछ स्टेप्स ओमिट करूँ, ठीक है। तो अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल निडर निश्चिंत होकर पूछ लेना, बिकॉज ये स्टेप्स ओमिट करना जरूरी है ताकि आप लोगों को धीरे धीरे आदत पड़े कि बिना डिस्क्रिप्टिव हुए भी हम आंसर को लेकर आ सकते हैं। पहले पहले डिस्क्रिप्टिव रहो, मतलब चीजों को ओमिट मत करो, स्टेप्स को छोड़ो मत, बट धीरे धीरे अपन को थोड़ा सा स्टेप से हटना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया था ना कार्तिकेय एकदम? यहाँ पर हमने -3x कैसे लाया था, क्लियर हो गया था? यस सर। सेम रूल से आया था, ठीक है। चलो बहुत यस बढ़िया, सर। राइट। बाकी सब क्लियर है कार्तिकेय? एवरीथिंग एल्स इज क्लियर? चलो ठीक है, आई होप सबको भी क्लियर है, बिकॉज आई कैन सी ऑल हैंड्स आर डाउन, राइट। चलो गुड क्लास, ये वाले सबमिट करो इन 2 क्वेश्चंस को, है ना, इन द इवनिंग क्लास, एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी क्वेरी, राइट। चलो बहुत बढ़िया क्लास, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन। लेट अस मीट टुमारो फ्रॉम 2 to 3, and in that session let us continue with the solving of the HC Verma concepts of physics आगे बनाते हैं, ठीक है, in the class, right? सबने सबमिट कर दिया है, I believe. Thank you class, thank you very much, thanks a lot, thank you.